Very good morning to all of you. Today we are going to discuss the second part of the poem An Elegy written in a country churchyard. The first part of the poem I have already discussed and uploaded on YouTube. Actually, the poem is not divided into parts, but the poem is so lengthy that it cannot be covered in one video. So that's why I thought to divide it in parts. And today I'm going to discuss the second part of the poem. In the first part, we discussed that इन फर्स्ट थ्री पैराग्राफ्स थॉमस ग्रे जो हैं ही इज़ जस्ट क्रिएटिंग एन एटमोसफियर ऑफ सैडनेस. ही इज़ नॉट डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट एनीबडीज़ डेथ. वो किसी की डेथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ही इज़ जस्ट क्रिएटिंग एन एटमोसफियर बाय क्रिएटिंग सम साउंड्स ऑफ स्टिलनेस और somberness or sadness. And then in the fourth paragraph he describes that he's talking about some graves. He's talking about some cells that some persons are they have been buried in their cells. Means they these are he's talking about the graveyards. वो graves के बारे में बात कर रहा है कि वो अपनी कब्र के अंदर जो है वो किस तरीके से बंद हैं. And the next paragraph is you can see you can see that the next paragraph is the breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn. No more shall rouse them from their lowly bed. ब्रीजी का मतलब है द विंड इज़ ब्लोइंग ओवर देयर. एंड इंसेंस मीन्स समथिंग एंग्री, कुछ है जो गुस्से में है. swallow means we all know that to take food or to take drink. And next is twittering. Twittering means chirping. And shrill means एक loud noise है जो कि that must be unpleasant, कुछ unpleasant सी sound है. Clarion means loud and clear sound. And echo means जो हमारी जो sound है जो echo करती है, गूंजती है. So in this paragraph, the speaker actually wants to clarify that the persons who are sleeping in their graves, they are not going to wake up. They are not going to wake up anymore. He explains that different types of sounds are there. कुछ तीन जो हैं type की sounds को describe किया है. Just like he's talking about the breezy call of incense breathing. कि जैसे एक कुछ हवा चल रही है और वो भी कैसी है, इंसेंस है, एंग्री है, जो गुस्सा है, नाराज़ है. और दूसरी जो साउंड वहाँ पे वो बात कर रहा है कि ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, जो स्ट्रॉ से बने हुए शेड हैं उनमें से भी कुछ चिर्पिंग साउंड आ रही है. और एंड थर्ड साउंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट द कॉक साउंड. कॉक के बारे में बात कर रहा है कि मुर्गे की जो आवाज़ आती है. ये तीन टाइप्स की साउंड्स हैं. because of these three sounds anybody can get wake up. Anybody can get up from their bed. अगर कोई जिंदा होता है तो इन तीनों तरह की आवाज़ को सुन करके they can get up. वो अपने बेड से उठ जाते हैं. They can wake up from their bed. But these persons who are buried in their graves, they are not alive, they are dead. So all these sounds even they cannot make them wake up from their bed. ये तीनों साउंड्स भी इवन ऐसी हैं जो उन्हें खड़ा जो है वो नहीं कर सकती हैं. दे आर जो फोर फादर्स हैं दे आर स्लीपिंग एंड दे विल नेवर राइज फ्रॉम देयर बेड्स वंस अगेन in their life. Even to hear the pleasure sounds of the country life,
विच दे यूज़ टू डू इन देयर व्हेन दे वर अलाइव, यू नो। जो टर्म है एक लॉली बेड, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो फोर फादर्स हैं दे आर बरिड नाउ, एंड और वो बरिड हैं, अब दबा दिए जा चुके हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा हिंट भी मिल रहा है कि जो उनकी कंडीशंस थी, दोज कंडीशंस वर वेरी हम्बल व्हेन दे वर अलाइव। जब वो अलाइव भी थे तब भी उनकी कंडीशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो नहीं थी। And the next paragraph is for them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envived kiss to share. In this paragraph, he is once again the speaker is talking about कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. He is talking about the other pleasures, the dead people, they will never be able to enjoy those things. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्हेन दे वर अलाइव दे यूज टू एन्जॉय दोज थिंग्स, वो उन एक्टिविटीज़ को एन्जॉय किया करते थे। लेकिन आज की डेट में व्हेन दे आर बरिड, जब वो बरिड हैं, तो दे विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय दोज थिंग्स। वो एन्जॉय जो है वो नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। एंड मीन्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट हर्थ की अगर हम बात करें तो हर्थ का मतलब होता है फायर प्लेस, मीन्स चूल्हा हम कह सकते हैं कि नो वन इज़ बर्निंग, नो वन इज़ गोइंग टू बर्न द हर्थ एट देयर वेलकम। मतलब नो बडी इज़ गोइंग टू कुक द फूड बिकॉज दे विल नेवर रिटर्न टू देयर होम्स। अब वो वापस घर में कभी नहीं आएंगे, तो उनके लिए कोई नो बडी इज़ वेटिंग, कोई वेट नहीं कर रहा है कि कोई आएगा देन हिज वाइफ विल कुक द फूड, कि वो फूड कुक करेगी। नो मोर वेट इज़ देयर, कोई इस तरह का इंतज़ार जो है वो नहीं रहेगा कि चूल्हा जलेगा उनके आने पर। एंड नो देयर इवन हाउस वाइफ, दे आर ट्राइंग, दे विल नॉट ट्राई टू टेक केयर ऑफ हिम आफ्टर ही गेट्स होम फ्रॉम द वर्क इन द इवनिंग, बिकॉज नाउ ही इज़ नो मोर, क्योंकि अब वो नहीं है, तो नो बडी विल वेट। इवन जो हाउस वाइफ है उसकी, शी विल नेवर वेट, वो भी अब वेट नहीं करेगी। एंड नो चिल्ड्रन रन, जब इंसान जब वो लोग जिंदा थे तो देयर किड्स यूज टू रन टूवर्ड्स देम एट देयर वेलकम। जब वो आया करते थे तो उनके बच्चे उनकी तरफ भागा करते थे टू गेट अ किस फ्रॉम देयर फादर, बट नो सच काइंड ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग टू हैपन इन एट प्रेजेंट, बिकॉज नाउ दे आर बरिड इन देयर सेल्स। अब वो अपने सेल्स के अंदर जो हैं वो दब चुके हैं, और नाउ दे आर नॉट गोइंग टू राइज फ्रॉम देयर सेल्स। अब वो अपने सेल्स से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। सो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो प्लेजर्स हैं, ये दे आर नॉट गोइंग टू एन्जॉय एनी मोर। ये इन चीज़ों को एन्जॉय जो है वो नहीं करने वाले अब। तो द नेक्स्ट अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो the next paragraph is oft did the harvest to their sickle yield their furrow oft, the stubborn glebe has broke, how jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stroke. ब्लेजिंग का मतलब है यहाँ पर अगर हम बात करें सिकल की बात करें तो सिकल का मतलब होता है जैसे एक टूल है, a type of tool which we use in which is used by the farmers, जो farmers के द्वारा यूज़ किया जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो दराती, अगर हरियाणवी में सुना हो तो दराती भी बोलते हैं। यील्ड का मतलब है हार मानना, और स्टबर्न का मतलब है जिद्दी, जैसे कुछ समथिंग हार्ड, कुछ कठोर सा। और ग्लेब का मतलब है मिट्टी। जोकंड मीन्स हैप्पी, एंड स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कुछ स्ट्रॉन्ग सा होता है जो। और अब इन लाइंस में भी वंस अगेन द पोइट सेज दैट नाउ दीज डेड विलेजर्स दे कैन नॉट एन्जॉय देयर लाइफ। अब वो अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू एन्जॉय देयर लाइफ एनी मोर बिकॉज दे आर डेड नाउ। अभी वो डेड हैं, तो वो एन्जॉय नहीं करेंगे अपनी लाइफ को। नाउ
there is no family, no children for them, and room will not be kept warm for them now. और कहीं ना कहीं actually he's talking about कि they used to वो जो अपने टाइम में क्या करते थे कि जो अपनी सिकल थी, अपनी दराती से जो है वो अपनी हार्वेस्ट जो है वो काटा करते थे, अपनी जो फसल थी वो काटा करते थे. एंड they were strong fellows, they used reap their harvest with their sickles, and they broke the tough grounds, जो टफ ग्राउंड्स हुआ करते थे. दे यूज़ टू टफ ग्राउंड विद देयर प्लोज, अपने हल से जो है उन्हें दे यूज़ टू ब्रेक द टफ ग्राउंड्स, जो इवन कठोर से कठोर ग्राउंड भी हुआ करते थे. दे यूज़ टू ब्रेक दोज ग्राउंड्स फॉर देयर फार्मिंग, अपनी फार्मिंग के लिए उसे भी उपजाऊ बना दिया करते थे. एंड when they were alive, they used to go to their fields with their bullocks, and they used to be very cheerful, बहुत खुश हुआ करते थे. And they used to cut down the trees with their axes. And I mean, in this paragraph he's dedicating these lines to those dead villagers. ये जो lines हैं ये dedicate कर रहा है वो उन dead villagers को who are now buried. He's describing how cheerful their life was. उनकी लाइफ जो थी वो कितनी cheerful थी. How they used to be happy. वो किस तरीके से जो है खुश रहा करते थे even while working, काम करते हुए भी. They were not lazy, they were very strong people. इतने strong थे कि जो stubborn grounds थे, जो बहुत कठोर वाले, जो पथरीले पत्थर भी होते थे, grounds भी होते थे, उनको भी वो they used to cut with their sickle, अपने दराती से वो काट दिया करते थे. And this is he's just dedicating these lines to the dead villagers कि उनकी happy life को जो है वो dedicate किए हैं. And the next paragraph is let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with the disdainful smile the short and simple annals of the poor. एम्बिशन को अगर हम देखें यहाँ पर तो ही इज़ यूजिंग कैपिटल ए. उन्होंने कैपिटल ए को जो है वो यूज़ किया है. और ग्रैंडियर की भी बात करें तो द पोएट हैज़ यूज द कैपिटल जी. इट सीम्स दैट ही इज़ पर्सोनिफाइंग दीज टू वर्ड्स. ऐसा लगता है कि वो इन दोनों वर्ड्स को जो है वो कहीं ना कहीं पर्सोनीफाई कर रहा है. ही इज़ प्रेजेंटिंग दीज वर्ड्स एज पर्सनस. वो इन दो वर्ड्स को, इन शब्दों को एज अ पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऐसा लगता है कि वो खुद पर नहीं लेना चाह रहा है, वो वर्ड्स के थ्रू जो है वो कुछ ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज. वो मैसेज को इन शब्दों के थ्रू कन्वे करना चाह रहा है. दैट्स वाई ही इज़ पर्सोनीफाइंग, दैट्स वाई ही इज़ यूजिंग कैपिटल ए एंड कैपिटल जी इन दीज वर्ड्स. Actually, the speaker is telling the readers that they should not they should not mock the hard work. They should not make fun of the hard work or the homely simple pleasures or the unsung destinies of the poor farmers in the graveyard. जो unsung है, मतलब unsung का मतलब जो जिसकी गाथा नहीं गाई गई है, उनके ऐसे काम जिसको लोगों ने डिस्क्राइब नहीं किया है, कहीं लिखा नहीं गया है. तो कह रहा है कि जो एम्बिशियस लोग हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी टाइप के जो लोग हैं, दे डोंट हैव द राइट. उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो दे शुड नॉट मेक फन ऑफ दीज पुअर पीपल, कि वो उनकी सिंपल सी जो लाइफ थी जो कहीं डिस्क्राइब नहीं की गई उसका वो मजाक बनाएं. ऐसा किसी को हक नहीं है. जो एम्बिशियस पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं, दे शुड नॉट लुक डाउन अपॉन दीज पुअर पीपल. वो उन्हें चाहिए कि वो उन्हें लुक डाउन ना करें, उनका मजाक ना बनाएं.
Actually, he just asked them not to look down their homely joys, and he asked them not to look disdainfully at their short and simple lives. उनकी लाइफ जो थी नो डाउट कि शॉर्ट थी लेकिन सिंपल थी, बट इट डजंट मीन कि एनीबडी शुड मेक द फन ऑफ देयर लाइफ, कि उनकी उनका कोई मजाक बनाए. दिस पीपल वर पुअर, नो डाउट दैट दे वर पुअर, ऐसा कोई डाउट नहीं है कि हाँ ठीक है पुअर थे, but they lived an obscure life. Yes, they were honest and good people. Poor जरूर थे लेकिन honest थे, good people थे. एंड जैसे रिच पीपल जो हैं वो रिस्पेक्ट जो है डिज़र्व करते हैं, इन द सेम वे द पुअर पीपल ऑल्सो डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट. So he's just requesting, he's just asking the ambitious people not to make fun of these poor people who are now buried in their graveyard, जो अब अपने graveyard के अंदर हैं. उनका मजाक जो है वो किसी भी तरीके से ना बनाया जाए, वो ऐसा रिक्वेस्ट जो है वो स्पीकर कर रहा है. And the next paragraph is the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. Actually, once again, he's talking about, the poet is talking about the futility of man's pride. वो बात कर रहा है कि जो भी रिच पीपल हैं, जो एम्बिशियस लोग हैं, who feel proud of their life, जो बहुत अहंकार महसूस करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्यूटिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि सब बातें जो प्राइड वाली हैं, वो सब बातें जो है वो निरर्थक हैं. बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबडी लीड्स टू डेथ. हर कोई कितना भी रिच क्यों ना हो, कितनी ही सक्सेस उसने क्यों ना पा ली हो, अल्टीमेटली his life leads towards the death. Ultimately उसको मरना है एक दिन. So he says that the some people are proud of their noble birth. कुछ लोग हैं जिन्हें who feel proud of their noble birth कि yes we are born in that family, so they boast of their family name. वो खुद कुछ नहीं करते हैं, बस ये महसूस करते हैं कि हाँ उनका जो बर्थ हुआ है वो एक बहुत अच्छी फैमिली में हुआ है. सो दे जस्ट बोस्ट ऑफ देयर फैमिली नेम. वो अपनी फैमिली नेम को लेकर के डींगे हाँकते रहते हैं. सो some people are there who are proud of their power. उन्हें लगता है कि they are so powerful, उनकी अप्रोच है, पावरफुल हैं वो लोग. तो they feel proud, वो प्राउड फील करते हैं. एंड सम पर्सन्स आर देयर, कुछ ऐसी कैटेगरी भी है लोगों की हु आर प्राउड ऑफ देयर ब्यूटी एंड हु आर प्राउड ऑफ देयर वेल्थ. उन्हें अपने पैसे का बहुत गरूर है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं. बट दे फॉरगेट दैट द बिग नेम ऑफ द फैमिली इट कैन नॉट सेव देम फ्रॉम डेथ. मतलब चाहे आप कितनी बड़ी फैमिली में पैदा हुए हैं, बट यू कांट अवॉइड द डेथ. आप डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं. तो डेथ इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच और द पुअर. रिच और पुअर में नहीं देखती है कौन इंटेलिजेंट है, कौन फूल है, कौन मूर्ख है. किसी भी तरह का डिफरेंस जो है जो है वो डेथ जो है वो नहीं बनाती इस तरह का डिफरेंस. एवरी मैन ग्रेट and small, he or she will have to die one day. एक दिन तो सबको मरना ही पड़ेगा. तो डेथ जो है he is talking about inevitable है. मतलब डेथ से जो है वी कांट एस्केप फ्रॉम डेथ. हम डेथ से बच नहीं सकते हैं. नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम द डेथ. एंड डेथ डज नॉट स्पेयर द पीपल ऑफ हाई बर्थ इवन. आपने कितनी ही बड़ी फैमिली में पैदा हुए हों, हाउ पावरफुल यू आर, इट डजेंट मैटर एट ऑल. आप हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितने भी आप सुंदर क्यों ना हों, कितने ही आप वेल्दी क्यों ना हो, कितना ही पैसा आपके पास क्यों ना हो, डेथ नेवर स्पेयर एनीबडी. डेथ जो है वो कभी भी किसी को स्पेयर नहीं करती है. एंड द पाथ्स ऑफ द ग्लोरी लीड अ मैन. इनफैक्ट जो पाथ ऑफ ग्लोरी है, इट लीड अ मैन सूनर टू हिज डेथ.
वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है मृत्यु के करीब ले जाती है. सो ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट, वो सिर्फ बार बार एम्बिशियस और रिच पीपल को रिक्वेस्ट कर रहा है कि डोंट मेक फन ऑफ द पुअर पीपल. दे हैड लिव्ड अ वेरी हार्ड लाइफ. नो डाउट कि वो पुअर थे, लेकिन उनकी लाइफ जो थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से भरी रही है. और नोबडी हैज़ द राइट, किसी को ये हक नहीं पहुंचता है कि कोई उनका मजाक बनाए. तो अल्टीमेटली जो है हर किसी का एंड जो है वो एक ही है, सबकी डेथ जो है वो होनी ही है. तो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़, nor you, you proud impute to these the faults, if memory over their tomb no trophies raise, where where through the long drawn asile and fretted vault, the pealing anthem swells the note of praise, can storied on animated bust, back to its mansion, call the fleeting breath. फिर से जो है वंस अगेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द पुअर पीपल. वो फिर से फेवर कर रहा है पुअर पीपल को कि नो मॉन्यूमेंट्स, किसी भी तरह के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ट्रॉफीज़ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके से मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहा है कि कोई उन्हें ट्रॉफीज़ नहीं दी गई उनके काम के लिए. नो मॉन्यूमेंट्स आर रेज्ड ओवर द ग्रेव्स ऑफ द पुअर पीपल. इन गरीब लोगों की ग्रेव पर किसी भी तरह का कोई मॉन्यूमेंट, कोई स्मारक जो है वो नहीं बनाया गया है. इवन नो सॉन्ग्स आर संग इन देयर प्रेज. वट एवर दे डिड इन देयर लाइफ, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में किया, उसकी प्रेज़ में किसी ने भी नोबडी संग अ सॉन्ग इन देयर प्रेज़. उनकी प्रशंसा में किसी ने कोई गाना नहीं गाया. एंड नो ट्रिब्यूट्स आर पेड टू देम इन चर्च. इवन कोई उन्हें ट्रिब्यूट भी नहीं किया गया है किसी भी तरह के चर्च में जा कर के. बट द प्राउड पीपल दे शुड नॉट ब्लेम देम फॉर इट. लेकिन जो प्राउड पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं, जो यूजुअली मजाक बनाते हैं, दे शुड नॉट ब्लेम देम. अब अगर उन्हें प्रेज़ नहीं मिली है, उन्हें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला उनके काम का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ब्लेम किया जाए. इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट वाज नॉट देयर फॉल्ट एट ऑल. वो उनका फॉल्ट नहीं था. तो मेमोरियल्स जो हैं वो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दोज मैन्यूमेंट्स. अगर हम किसी मरने के बाद किसी के मॉन्यूमेंट्स बने भी हैं, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दोज मॉन्यूमेंट्स. उन मॉन्यूमेंट्स का यूज़ कहाँ है. Even the ashes of the great people are kept in beautiful decorated urns. कई बार क्या होता है कि जो एशेज़ होते हैं बड़े बड़े लोगों के, वो अर्न्स में, अर्न्स होता है जैसे अर्न का मतलब कलश में रख दिए जाते हैं. तो कई बार बहुत रिच पीपल हैं, कोई पॉलिटिकल कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी का कोई पर्सन है, तो उनके कई बार क्या करते हैं कि उनके स्टैचूज़ जो हैं दे आर मेड टू ऑनर देम. उन्हें ऑनर करने के लिए उनके स्टैचूज़ बना दिए जाते हैं. उन्हें ग्रेट ट्रिब्यूट्स जो हैं दे आर पेड टू देम इन चर्च. चर्च के अंदर उन्हें बहुत ट्रिब्यूट दिया जाता है. लेकिन जो ये जितने भी चीज़ें हैं, दे कैन नॉट रिस्टोर देयर ब्रेथ, वंस इफ समवन इज़ डाइड. अगर कोई एक बार इफ समवन इज़ डाइड, देन ही कैन नॉट, वी कैन नॉट मेक हिम वेक अप फ्रॉम हिज डेथ. हम उसे उसकी डेथ से खींच करके नहीं ला सकते हैं. तो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं या आन के अंदर उनके जो एशेज़ कलेक्ट करके रख रहे हैं, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दोज थिंग्स. उन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग बैक. हम लोग उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं. अगर उनका जो स्टेटस है, इट कैन नॉट ब्रिंग देम बैक टू लाइफ. द सॉन्ग्स ऑफ प्रेज इवन दे कैन नॉट मूव देम. अगर उनके मरने के बाद उन्हें सॉन्ग्स डेडिकेट कर भी दिए जाएं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दो सॉन्ग्स. उनका क्या यूज़ है. वर्ड्स ऑफ फ्लैटरी कैन गिव नो कम्फर्ट टू देयर डेड ईयर्स. अगर आप बाद में उनकी फ्लैटरी कर भी रहे हैं, तो दे विल नॉट बी एबल टू लिसन टू दो सॉन्ग्स. वो उन सॉन्ग्स को सुन ही नहीं पाएंगे. So it is totally useless to feel proud of one's glory and greatness. कहीं भी कोई यूज़ नहीं है. अगर कोई अपना डिंगे जो हैं अगर हाँक रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, तो देर इज़ नो यूज़. कोई इस तरह का यूज़ नहीं है. एंड नेक्स्ट इज़
Next paragraph is perhaps in this neglected spot. Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant. Once pregnant with celestial fire, hands that the road of empire might have swayed or walked to ecstasy, the living liar. Once again, the poet is talking about that, about the डेड पीपल के बारे में ही फिर से वो बात कर रहा है कि उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, दे हैड द हार्ट्स फुल ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन. बहुत सारे ऐसे लोग थे, देवर फुल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, जो स्पिरिचुअलिज्म से भरे हुए थे. और उनमें से भी कुछ ऐसे लोग भी थे, दे कुड रूल एन एम्पायर. ऐसे लोग भी हो रहे होंगे जो किसी एम्पायर पर रूल कर सकते थे. एंड सम ऑफ देम वर ग्रेट म्यूजिशियंस. कई लोग ऐसे भी रहे होंगे उनमें से जो बहुत महान म्यूजिशियंस रहे होंगे. एंड दे कुड प्ले द लायर सो वेल दैट इट कुड वेक अ हार्ट ऑफ इट कुड वेक अ हार्ट टू अ ग्रेट जॉय. कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जो दे कुड प्ले द लायर, वो ऐसी वीणा बजाते होंगे कि किसी का भी जो मन है वो खुशी से भर जाता होगा. बट द पॉवर्टी वॉज विद दैम. उनके साथ जो थी वो उनकी पॉवर्टी थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉवर्टी द ट्रेजर ऑफ नॉलेज, जो उनका जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज था, दैट रिमेन्ड जस्ट लाइक क्लोज्ड बुक फॉर देम. देयर बुक रिमेन्ड सील्ड बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी. उनकी जो नॉलेज थी, इट कुड नॉट बी रेड बाय अदर्स. वो दूसरों की द्वारा पढ़ी नहीं गई, बिकॉज पॉवर्टी केप्ट देयर बुक क्लोज्ड. उनकी जो पॉवर्टी थी, वो एक कारण था जिसकी वजह से उनकी जो नॉलेज की जो बुक थी वो बंद ही रही. एंड नोबडी कुड गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट. उससे कोई अपना बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाया. तो उनका जो टैलेंट था, दैट रिमेन्ड बरिड विद इन दैम, वो उनके साथ ही दफन हो गया. दे कुड नॉट शो द काइंडली फ्लो ऑफ देयर सोल. जो वो उनकी जो उनके अंदर जो छिपे हुए हिडन टैलेंट्स थे, दे कुड नॉट एक्सप्रेस इट. वो इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए. तो देयर वर्थ and value, it remained unnoticed. And they left the world unhonored and unknown. और वो बिना ऑनर हुए इस दुनिया से जो है वो चले गए. तो हर पैराग्राफ के अंदर जो है ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि उनकी जो लाइफ थी, दैट मस्ट बी ऑनर्ड. वो ऑनर्ड ही रही होगी. उनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो टैलेंटेड रहे होंगे, लेकिन उन्हें जो है ऑनर नहीं मिल पाया, आफ्टर डेथ भी नहीं मिल पाया. और ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रगल ड्यूरिंग द लाइफ के दौरान भी उन्होंने जो जो स्ट्रगल्स किए. तो ही इज़ डेडिकेटिंग दीज लाइन्स to these poor people now who are now buried under in their graves, जो अपने सेल्स में अब दफन हो चुके हैं. So I hope you are able to understand about this poem. आपको इस पोएम के बारे में जो है समझ आ रहा है कि इट्स टोटली रिलेटेड टू अ कंट्री. ये गांव से रिलेटेड है, बिल्कुल देहाती जो है एक ग्रेवयार्ड के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में, कब्र के बारे में बात की गई है, कि जो देहात में है, बिल्कुल जो किसी गांव में है, रूरल एरिया में है. तो आई होप यू आर गेटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. तो इस पोएम को हम आगे भी, इसका तीसरा जो पार्ट है वो इसका आगे आई एम गोइंग टू अपलोड द थर्ड वीडियो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेकेंड पार्ट. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.